Today, in this lecture, we are going to discuss IC 555, IC Integrated Circuit 555, 555 IC. This IC is a widely used IC Integrated Circuit. इसका widely used है. कुछ एप्लीकेशंस तो हैं, मैंने यहां लिख रखा है टाइम डिले सर्किट, हम लोग देखेंगे कैसे. जनरेटिंग स्क्वायर वेव, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर, pulse width modulator. You can change the width of the pulse width modulator. In all these, this IC can be used. So it has a wide application. We will see what is A stable, mono stable, bi stable means. We will see this. So in this lecture, we will first cover the internal architecture of IC 555. Then we will do some project so that we can understand why am I studying this IC. We will learn by doing. So we will do some project using this IC. इस IC का यूज कर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे और समझेंगे कि क्या इसका एप्लीकेशंस है. कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं, इन सब को इसमें से कुछ हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहले, इससे बढ़ने से पहले ये जो मैंने लिखा है ए स्टेबल, मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं. फिर उसके इंटरनल आर्किटेक्चर पर आएंगे. ए स्टेबल इज फ्री रनिंग. तो स्क्वायर वेव आपको इस तरह से लो हाई इस तरह से मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड ए स्टेबल. नो स्टेबल स्टेट, फ्री रनिंग मोड. नो स्टेबल स्टेट लिखिए. फॉर ड्यूरेशन it will be low, then it will be high, it will low high. This will be the output. This mode is called A stable mode. हम लोग IC 555 को A stable mode में ऑपरेट करा सकते हैं. We can operate it in monostable or bistable. In 3 mode we can operate. This is the A stable mode. Then this is A stable mode. This is A stable. Write down no stable state, A stable mode. And then in monostable mode, it has one stable state. Suppose zero, low is the stable state. You give a trigger voltage, you provide a trigger voltage, it goes to high for a duration, and then it again comes to the stable state. Again it comes to the stable state. Monostable, one stable state. As shown in the diagram, write down, when we provide a trigger, it goes to high unstable state. Again, after a duration, it comes back to the stable state. Note down this. Again, it comes back to the stable state. इसको नोट कीजिए. एक चीज मैं और यहां बोलना चाहूंगा कि IC 555 is also known as timer IC. इसका नाम टाइमर IC भी है. टाइमर क्यों? क्योंकि हम चाहें तो इस ड्यूरेशन को, कब तक ये हाई रहेगा, मैंने ट्रिगर दिया, कब तक ये हाई रहेगा, इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय जस्ट एडजस्टिंग द रजिस्टर एंड कैपेसिटर. मान लीजिए कि यहां ट्रिगर दिया, आप इतनी देर तक ऑन रखना चाहते हैं डिवाइस को, इतना देर के बाद ऑफ करना चाहते हैं. ये जो ड्यूरेशन ऑफ ऑन कैन बी कंट्रोल, देखेंगे इसको हम, बाय जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर. By just changing the value of R and C, we will see this. इसे IC 555 को टाइमर भी कहा जा सकता है. This duration can be controlled. This duration of on can be easily controlled or can be easily changed. इसको इजीली आप चेंज कर सकते हैं. देखेंगे कैसे करें. जस्ट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, हम लोग देखेंगे उसको. इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं. कब तक आप ऑन करना चाहते हैं, इतना देर, ये हम लोग देखेंगे. एंड देन वी हैव, दिस इज मोनोस्टेबल,
and then we have astable, sorry, bistable mode. As the name suggests, it has two stable states. Bistable mode. In bistable mode, if this is the stable state, 0 is the stable. You provided a trigger, it goes to hide. Now it remains in this state. Again you provide a trigger, then it goes to low. Again it remains in this state. Here is the trigger. Again it goes to the high state. It remains in this state. Provided the trigger, again it goes to this. So this is bistable. You can write it that bistable two stable state. It remains in stable state. Suppose it is in this state. You provided a trigger voltage. It goes to output goes to high state, and then it remains in the high state. Again you provided the trigger, then it goes to the low state. Then and it remain in this state. इसी स्टेट में रहता है. जब ट्रिगर देंगे ये अगले स्टेट में जाएगा, वहां रहेगा, फिर ट्रिगर देंगे तभी वो वापस आएगा. इसमें मोनोस्टेबल में क्या था, ट्रिगर दिए थोड़ी देर के लिए रहा, दिस ड्यूरेशन कैन बी कंट्रोल्ड, और उसके बाद क्या किया, वो वापस स्टेबल स्टेट पर आ गया. इसमें क्या है, वो वापस स्टेबल स्टेट तभी आएगा जब आप फिर से ट्रिगर दिए हैं. ये दोनों स्टेट इसका स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, यहां पर भी स्टेबल रहेगा until and unless you provided a trigger, then only it will change the state. Otherwise it will remain in the state either reset state or high state, either low or high. It will remain in that state. इस स्टेट पर है, ट्रिगर दिए यहां पर गया, अब इस स्टेट पर भी वो स्टेबल है, अपने आप चेंज नहीं करेगा जब तक कि आप ट्रिगर नहीं दिए. ट्रिगर दिए वो आपका फिर से रिसेट, फिर इसी स्टेट पर है वो, फिर से आप ट्रिगर दिए हाई पर गया, अब इस स्टेट पर फिक्स हो गया, स्टेबल हो गया, फिर से आप ट्रिगर दिए, देन इट विल गोस टू. So write down this. Having discussed about IC 555, we will discuss now the internal architecture of IC 555 timer IC. हम लोग ये देखेंगे. The study of internal architecture will help you understand its working. बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ ड्रॉ कीजिए. Just draw along with me. Just draw along with me. It has two op-amp. It has two op-amp. Op-amp has two input, one non-inverting, other inverting. Non-inverting. Just draw along with me. No need to remember. And now it has two output. One output. Name this as comparator 1. मैं एक नाम दे रहा हूं comparator 1. Other as comparator 2. Just I am naming it. Now its output is fed to a flip flop, SR flip flop or SR latch. You know, a flip flop has two output, both are complement. अगर यहाँ 1 होगा, here 0. If this is 0, this will 1. And two input, one is set, other is reset. I am showing reset here. Just draw along with me. Set here. If set is high, output will be set to 1. If set is 0 and reset is 1, if reset is 1, it will be reset to 0. And just complement will be here. If set is 1, Q क्या होगा? Q will 1, Q bar क्या होगा? 0. Just complement. ये देख लिए तो complement. Reset 1 है तो Q क्या होगा? 0. Q bar क्या होगा? 1. So this is the SR flip flop, SR latch. Now coming to the input side, just draw along with me. Two comparator, two input, each has two input, in non-inverting, inverting. Now the IC contains 3 resistors. The IC contains 3 resistors. And the terminal is that. Now this is the outside connect, external connection. Here we connect VCC, outside VCC, and here we connect ground, outside. This is internal. This voltage we connect externally, ground externally. ठीक है, समझे बात को? Now this connected to here. This is connected to here. The non-inverting, just draw along with me. The inverting is connected here. Here in this, the non-inverting is connected here. Inverting, non-inverting, connect here.
देख रहे हैं, जैसे मैं ड्रॉ किया हूं वैसे ड्रॉ कीजिए। यहां पर यहां का वोल्टेज कितना होगा, यहां का वोल्टेज कितना होगा 2/3 VCC, ठीक ना होगा। देखिए मैंने यहां पर आपको शो भी कर दिया है। यहां का करंट कितना है इसमें, इस पाथ में करंट VCC/3R वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहां का वोल्टेज रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करंट इनटू रेजिस्टेंस 2R, R प्लस R, R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, यू कैन सी 2/3 VCC। नेम इट, मैंने इसका नाम दे दिया है, इसका नाम दे दिया इस टर्मिनल को VTH, नाम दे दिया VTH, ठीक है। इसी तरह यहां का वोल्टेज कितना होगा 1/3 VCC। एक रेजिस्टेंस है 1/3, 2 रेजिस्टेंस है 2/3, पूरा का पूरा है 3/3 यानी VCC। देख सकते हैं VCC/3R इंटू R, यहां का निकालिए। इसका भी एक नाम दे दीजिए VTL, यही लिख देते हैं VTL, V3L, VTH, VTL। अब यहां ध्यान दीजिए, समझे इस बात को, कैसे निकाले समझे। VCC/3R और क्या कर देंगे, R से मल्टीप्लाई कर देंगे, R से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख लीजिए। VTL कैसे निकाले हैं, R से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 1/3 VCC, इसका नाम दे दिया VTL, समझे। जस्ट ड्रॉ अलोंग विथ मी। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर ये वोल्टेज दिस पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग ऑफ कंपैरेटर 1, दिस लिखिए, लिखते भी जाइएगा, इज ग्रेटर देन दिस वोल्टेज दिस VTH 2/3 VCC। यहां का वोल्टेज अगर 2/3 VCC से ज्यादा होगा तो क्या होगा, दिस विल रिसेट, यहां ध्यान दीजिए, रिसेट कर देगा। और यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज अगर इस टर्मिनल के वोल्टेज से ज्यादा होगा तो क्या कर देगा, सेट। यहां का वोल्टेज ध्यान दीजिएगा, इसको भी ओपन रख, इसको भी कनेक्ट करेंगे हम, वी विल कनेक्ट दिस। यहां का वोल्टेज अगर इससे ज्यादा होगा, नॉन इन्वर्टिंग का इससे ज्यादा होगा, सेट कर दे, रिसेट कर देगा। यहां का वोल्टेज, अगर यहां का वोल्टेज, अगर यहां का वोल्टेज, अगर यहां का वोल्टेज देखिए, यहां VTL अगर ये ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर फिर से सॉरी ध्यान दीजिएगा, अगर ये वोल्टेज सॉरी VTL नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इससे ज्यादा होगा, यहां का वोल्टेज इससे ज्यादा होगा, यहां का वोल्टेज इससे ज्यादा होगा, तो क्या कर देगा, सेट कर देगा। अगर VTL इससे ज्यादा होगा तो सेट कर देगा, और अगर ये वोल्टेज इससे ज्यादा होगा तो ये क्या कर देगा, इसको रिसेट कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। ये पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा, अगर इसका पॉजिटिव ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग ये ज्यादा है, इस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है, रिसेट, इस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है, सेट, समझे बात। बस इतना ही ध्यान रखना। इस कंपैरेटर 1 का नॉन इन्वर्टिंग का ज्यादा है, रिसेट, कंपैरेटर 2 का नॉन इन्वर्टिंग का ज्यादा है, रिसेट। यहां हाई करेगा, ये सेट कर देगा, सेट, यहां हाई रहेगा, ये सेट कर देगा। यहां ध्यान दीजिए, यहां का वोल्टेज ज्यादा है, सेट, यहां का वोल्टेज ज्यादा है, रिसेट, यहां का वोल्टेज ज्यादा है, प्लस को ध्यान दीजिए, रिसेट, यहां का वोल्टेज जाना है, सेट, समझे बात को। अब यहां के वोल्टेज को यहां ध्यान दीजिए, एक एक्सटर्नल टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे, यहां भी एक एक्सटर्नल टर्मिनल से कनेक्ट करना है, इसका। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट कर दिए आप, कनेक्ट कर दिए, इस टर्मिनल का नाम दे रहे हैं हम, देखेंगे अभी क्यों, थ्रेशोल्ड। इस टर्मिनल एक्सटर्नल टर्मिनल है ए थ्रेशोल्ड, इस टर्मिनल का नाम दे रहे हैं हम लोग ट्रिगर, दिस विल बी यूज्ड फॉर ट्रिगर। देखे थे मोनोस्टेबल में ट्रिगरिंग की जरूरत होती है, ट्रिगर, समझे बात को। अगर थ्रेशोल्ड का यह वाला वोल्टेज ज्यादा है इससे तो क्या करेगा, रिसेट। अगर ये वाला वोल्टेज ज्यादा है इससे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला वोल्टेज ज्यादा है इससे तो आपका सेट। देखिएगा यहां पर मैंने यहां से निकाला है, यहां पर मैंने यहां ट्रिगर के लिए यहां से निकाला, ध्यान दीजिएगा, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इट हैज अ BJT, इट हैज अ, आई एम शोइंग NPN ट्रांजिस्टर, अ ट्रांजिस्टर जिसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, और यहां का टर्मिनल ग्राउंड, एक्सटर्नल टर्मिनल है, सारे एक साथ ग्राउंड कर देंगे। इसको भी क्या है, ये ग्राउंड है, यहीं शो कर देते हैं, यहां से निकला हुआ है, ग्राउंड है, सारे कोई दिक्कत नहीं है। और यहां का जो टर्मिनल है इट इज केप्ट आउट, दिखाएंगे क्यों, एक्सटर्नल, दिस पिन इज कॉल्ड डिस्चार्ज, इट विल बी यूज फॉर डिस्चार्ज, देखेंगे कैसे, समझे बात को। ये है इसका इंटरनल आर्किटेक्चर, ये है इसका इंटरनल आर्किटेक्चर। इससे पिन्स निकले हुए होंगे, 1 पिन फॉर VCC,
1 पिन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, 1 पिन इज कॉल्ड ट्रिगर, जहां देखा जाए ट्रिगर करना था, 1 पिन इज कॉल्ड डिस्चार्ज, आईसी में आपके पिन होंगे, और 1 पिन इज फॉर ग्राउंड। ये इंटरनली ये सारे आपके क्या होंगे, इंटरनल टू द आईसी। यहां से ये सारे आपके इंटरनल टू दी आईसी। यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये ना हो, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं। ये सारे आपके यहां होंगे और ये बाहर, यहां ग्राउंड किए हैं। ये सारे आपके आईसी के अंदर होंगे। ये ग्राउंड को भी हम लोग अंदर से इंटरनली, ये सारे आपके आईसी के अंदर होंगे। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। ये आउटपुट होगा आपका, यहां से हम लोग आउटपुट पिंस निकले हुए होंगे। ये सारे आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए बता रही। दिस पिन विल बी आउटसाइड, ये भी वीसीसी आउटसाइड होगा, ये वीसीसी भी आपका आउटसाइड निकला हुआ होगा। इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये सारे अंदर होंगे, ये सारे वीसीसी निकले हुए। ये बाहर पिन, ये बाहर पिन, ये बाहर पिन, ये बाहर। समझे बात को, समझे बात को। ये सारे आपके पिंस बाहर निकले होंगे वीसीसी के लिए। इंटरनल है, यहां से देखिए सारे इंटरनल है, मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये सारे इंटरनल है। दिस ऑल आर इंटरनल, दिस पिंस आर आउटसाइड। समझ गए, इसमें पिंस निकले। अब किस पिन को डिस्चार्ज का क्या मतलब है, ट्रिगर का क्या मतलब, दिस विल बी यूज्ड फॉर ट्रिगर, समझ सकते हैं। आउटपुट विल बी टेकन फ्रॉम हेयर, वीसीसी विल बी कनेक्टेड हेयर एंड ऑल दिस थिंग्स। ये आप पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। So we have studied this internal architecture, 2 op-amp, 1 flip-flop and a transistor. These pins are outside, 1 pin for VCC, 1 pin for ground. If you connect VCC ground here, the voltage at this point will be 2/3, 2/3 VCC. You can just for the sake of easiness, I am naming it at VTH. हर बार मैं 2/3 VCC ना लेकर VTH बोल दूंगा। एंड दिस टर्मिनल वोल्टेज इज 1/3 VCC, इसे मैं बोल दे रहा हूं VTH। TH T, अपर वाले TH TL, ठीक है ना। हाई लो, इसको हाई एक देखते हैं, बताएंगे क्या है, कैसे क्यों बोले हैं, कोई कारण नहीं, और भी नाम बोल सकते हैं, नाम से कुछ नहीं रखा, केवल ध्यान क्या रखना है, 2/3 VCC, 1/3 से। You can name it some other term also, that name has nothing to do, but here this pin is called threshold pin, this pin is called trigger pin, this is called, better to write it here because I have to draw the circuit here, threshold, white called threshold, you will easily understand. This pin is for trigger and this pin is for discharge. This pin is for output. Draw it like this. Now I am going to use it as a stable multivibrator. हम कैसे यूज करने जा रहे हैं? We are going to use it as a stable multivibrator. A stable multivibrator क्या है? No stable state. For few duration it will be at high, then it will come. After a while it will come to low. High, low, high, low. It will keep generating high, low, high, low, high, low, high. अब इसे इस तरह से बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहां का वोल्टेज देखिए कंपेयर कर देगा, कंपरेटर कर, यानी कि जब हाई लो होने के लिए क्या होगा, इसके आउटपुट को सेट रिसेट होते रहना होगा। अब क्या करें उसके लिए? कैपेसिटर एक सुटेबल कंपोनेंट हो सकता है, बिकॉज इट्स वोल्टेज व्हेन इट चार्ज वोल्टेज इंक्रीजेज, व्हेन इट डिस्चार्ज वोल्टेज डिक्रीजेज। ऐसा करें, एक कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज करते हैं एक्सटर्नली लगाकर, इसलिए इसका नाम डिस्चार्ज रखें। दिस बीजेटी इज यूज्ड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर, एक्सटर्नल कैपेसिटर। दिस बीजेटी इज यूज्ड टू डिस्चार्ज द एक्सटर्नल कैपेसिटर, इसीलिए इसका नाम डिस्चार्ज रखें। ध्यान रहेगा? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, वीसीसी से ही कनेक्ट कर वीसीसी से ही एक सप्लाई, जो वीसीसी क्या किया, लिया, और वीसीसी से ही, यहां वीसीसी से यहां दिखा रहे हैं, एक रजिस्टर और 2 रजिस्टर लगा दिए। एक का नाम दे दूं RA, कुछ भी नाम दीजिए, RB, और एक कैपेसिटर लगा दिया।
और एक कैपेसिटर लगा दिया और इसको ग्राउंड कर दिया। एक ब्रांच और निकाला, कैपेसिटर वोल्टेज कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स चार्ज, देन इट वोल्टेज इंक्रीजेज, व्हेन इट डिस्चार्ज के लिए बीजेटी मैंने यूज किया, इस बीजेटी से मैं इसको डिस्चार्ज करा दूंगा, देन इट वोल्टेज डिक्रीज। अब मैं क्या करा रहा हूं, इसी से डिस्चार्ज कराना है। चलो मैं क्या करता हूं, इसको, ये कैपेसिटर ऐसे चार्ज होगा, देखिएगा इससे चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, इट वोल्टेज विल चेंज। और मैं क्या कर रहा हूं, इसको चार्ज कराना है, डिस्चार्ज कराना है। यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से वायर देखिएगा, यहां से ऐसे कनेक्ट कर दूं, यहां से वायर निकालकर इस टर्मिनल को यहां से मैंने डिस्चार्जिंग पाथ दे दिया। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इट विल डिस्चार्ज द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, देखिए डिस्चार्जिंग का भी प्रोविजन कर दिया, मुझे वोल्टेज को चेंज कराना है, सो इट हैज बोथ द प्रोविजन, चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग। फॉर चार्जिंग दिस इट विल चार्ज थ्रू दिस एंड देन देयर इज अ प्रोविजन, दिस ट्रांजिस्टर इज देयर, इट विल डिस्चार्ज। तो मैंने इसको डिस्चार्ज के लिए ऐसे एक पाथ दे दिया है, व्हेन ट्रांजिस्टर ऑन होगा ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, इसे बना लीजिए। अब देखिए क्या करना है, मुझे ए स्टेबल मोड में रखना है इसको, यानी कि इट विल फ्री रनिंग मोड। ए स्टेबल मोड मींस फ्री रनिंग मोड, इट विल कीप्स प्रोवाइड आउटपुट विल कीप चेंजिंग हाई लो in this fashion. It will change. Now in this mode there is no need to trigger, because यहां ट्रिगर करेंगे नहीं, अपने आप हाई लो होते रहेगा। थ्रेशोल्ड को कहां कनेक्ट करना था, देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज को चेंज कराना है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज करेगा, इस टर्मिनल को बोलते वीसी, यहां का चेंज करेगा, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहां पर, यानी कि ये जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब डिसीजन लेगा, इससे ज्यादा है तो रीसेट कर दो, इससे ज्यादा है तो रीसेट कर दो, तो इसको मुझे यहां कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये वोल्टेज अब क्या होगा, दिस वोल्टेज विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस कैपेसिटर वोल्टेज, दिस वोल्टेज विल चेंज अकॉर्डिंग टू, इसको यहां कर देना है। लेकिन क्या अभी हम ट्रिगर का यूज करेंगे इन ए स्टेबल मोड, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रिगर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर, दोनों को ऐसे जोड़ते हुए, इसको कहां जोड़ दिए, यहां, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वहां ड्रॉ कीजिए, इसको कहां जोड़ दिए, यहां, इसको कहां जोड़ दिए, चलिए इसको मैं हटाकर यहां लिख दे रहा हूं VCC। इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, VC चेंज करेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज करेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसीलिए इसका नाम दे दिया है थ्रेशोल्ड। डिसीजन पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर डिसीजन लेगा, अगर इससे ज्यादा है इट विल रिसेट, अगर इससे ज्यादा है इट विल रिसेट, अगर इससे ज्यादा है इट विल रिसेट। कैपेसिटर का वोल्टेज अगर इससे ज्यादा है रिसेट। समझे बात को, हर एक चीज समझ गए। सेट, चूंकि वोल्टेज को वैरी कराना है, यहां का वोल्टेज को हमने कैपेसिटर का यूज किया, तभी तो वोल्टेज वैरी करेगा। हम लोग ट्रिगरिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, दोनों को शॉर्ट करके यहां जोड़े हैं। अब आगे वर्किंग देखिए, अब आगे का थोड़ा सा वर्किंग देखिए, इसको ड्रॉ कर लिए होंगे, पहले इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। समझे कैपेसिटर क्यों लगाया है, कैपेसिटर वोल्टेज चेंजेस, कैपेसिटर वोल्टेज VC पॉइंट क्या है, चेंज करेगा, एज इट चेंजेज दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज विल चेंज, इफ इट इज ग्रेटर देन VTH इट विल रिसेट। ठीक है, समझे बात को, क्यों ऐसा कराए हैं। चार्जिंग पाथ भी दिए हैं, डिस्चार्जिंग पाथ दिए हैं, चार्जिंग पाथ दिस, डिस्चार्जिंग पाथ दिस, इसको लिख सकते हैं। VC चेंज करेगा, चार्जिंग पाथ इट हैज टू पाथ, वन इज चार्जिंग पाथ, कैपेसिटर का चार्जिंग पाथ क्या है, दिस VCC RA RB, इससे चार्ज होगा थ्रू, किस तरह से चार्ज होगा, RA RB के थ्रू चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग पाथ भी है, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग पाथ क्या है, इट है डिस्चार्जिंग पाथ, देखिए किस तरह से डिस्चार्ज होगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए तो कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होगा, ऑन हो गया ट्रांजिस्टर, इस तरह से, यह कहां से पाथ मिला, ऐसे डिस्चार्ज होगा, इस तरह से ऐसे डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग पाथ क्या है, RB और ट्रांजिस्टर के थ्रू। ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तब ये डिस्चार्ज होगा, ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा, देखिए डिस्चार्जिंग पाथ इसको मिल गया इस तरह से, तब ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग पाथ मिल गया उसको, डिस्चार्ज होगा। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। जस्ट नोट डाउन दिस नाउ टू अंडरस्टैंड इट वर्किंग इन मैथमेटिकल फैशन। थोड़ा सा इसके वर्किंग को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हैविंग डिस्कस दिस कनेक्शन फॉर ए स्टेबल ऑपरेशन, वी नाउ try to understand its working in a greater detail. Working.
सपोज मान लीजिए इनिशियली द आउटपुट इज एट हाई स्टेट, आउटपुट या तो 1 हो सकता है तो 0, वी आर एज्यूमिंग दैट आउटपुट initially, right, initially assume that output is high. Write down complete sentence. And capacitor, I am dictating, just write it, is discharge. Discharge means capacitor voltage is 0. Now from this we start our discussion. So first draw it. This is the initial output voltage, V out, high, and this is the capacitor voltage, VC initially, discharge. Now from here just understand V out, plotting this, and VC. Initially this is high, Q bar is 0, 1 complement, Q bar 0 hai, then this transistor is off, right? In this condition transistor is off. Write down this condition, the transistor is off, so capacitor has no discharging path. Write down, note down this. In this capacitor, transistor has no discharging path and it charges from this VCC. See, capacitor charges through RA and RB. It charges through this. ठीक है? अब देखिए, एज द कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीजेज दिस टर्मिनल वोल्टेज चेंजेस. अगर ये टर्मिनल वोल्टेज चेंज करता है, इट कैन सेट रिसेट दिस फ्लिप फ्लॉप. सी, इट्स आउटपुट इज हियर, इट्स आउटपुट. एज द कैपेसिटर वोल्टेज चेंजेज, दिस थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर वोल्टेज चेंजेज. द ऑप एम्प्स इनपुट्स दिस नॉन इन्वर्टिंग एंड हियर इन्वर्टिंग चेंजेस. देख रहे हैं, ध्यान दे रहा है. एज वीसी चेंजेज, VC चेंजेस, चार्ज करेगा तो VC चेंजेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. एज VC चेंजेस, देखिए आप इसको, दिस पॉइंट वोल्टेज थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर वोल्टेज चेंजेस. थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर बोथ को मैंने कंबाइन कर दिया है, चेंजेस. कंप्लीट सेंटेंस नहीं किया, ऑल्सो चेंजेस. मैं सिंपल लिख रहा हूं. अब अगर ये चेंज, कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, दो, अब यहां चेंज करेगा तो कंपैरिजन पॉइंट क्या है मेरा, ये और ये. अगर ये दोनों से मैंने कंपेयर कर, कंपैरेटर क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा और इसको कंपेयर करेगा. ये कंपैरेटर विल कंपेयर फ्रॉम दिस, दिस कंपैरेटर विल कंपेयर फ्रॉम दिस, कंपैरेटर 1 विल कंपेयर दिस, कंपैरेटर 2 विल कंपेयर दिस. इसी से चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस. इससे ज्यादा है कि कम, आउटपुट विल चेंज. ये होता है कंपैरेटर में. अगर ये ज्यादा है तो आउटपुट विल 1, अगर ये ज्यादा है, दिस इज हाई, इन्वर्टिंग इज हाई, आउटपुट इज 0. एक तो होता है ना. सो यही डिसीजन पॉइंट को थोड़ा मार्क कर लेते हैं. ये है मेरा VT 1/3 VCC, इसी का नाम दे दिए VTL, और ये है मेरा VTH. दोनों को मार्क करते हैं. अब देखिए, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा. पहला ग्राफ, दोनों लाइन को मैंने मार्क कर दिया. VC के दो डिसीजन पॉइंट है. एज VC चेंज, देयर कैन बी सम डिसीजन, बिकॉज एट इट एक्सीड दिस, दिस इज हाई, सो VC चेंज करेगा सब. अगर इससे ज्यादा है तो यहां पर ये 1, इट विल चेंज. रिसेट पर 1 होगा तो रिसेट कर दो. ठीक है, ये देखते हैं. तो यहां पहले देख लेते हैं. चलिए VTH पर, ये देखिए, इससे अगर एक्सीड, इफ इट एक्सीड VTL, VTL से एक्सीड किया, VTL से एक्सीड किया, 1/3 VCC से एक्सीड किया, ध्यान दीजिए, इससे एक्सीड कर गया, इससे एक्सीड किया, तो देखिए इससे एक्सीड किया, यहां पर देखिए क्या होगा, इससे देखिए इस पे एक्सीड कर गया, तो ये क्या हो गया, ये ज्यादा, ये इससे बढ़ गया, ये इससे बढ़ गया, ये इससे, ये आपका ये वोल्टेज क्या हो गया, इससे एक्सीड कर गया, इससे एक्सीड कर गया, तो यहां देखिए क्या होगा, ये एक्सीड किया तो 0. अब ये देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या है, यहां तो 2/3 VCC है, 1/3 VCC एक्सीड किया है, यहाँ 2/3 VCC है, वहां 1/3 VCC है. कौन ज्यादा, ये ज्यादा. तो यहां पर आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका 0 0 0. तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा. पहली बार व्हेन इट फर्स्ट क्रॉसेस VTL देयर इज नो चेंज. देखिए कहां, देखिए VTL यहां देखिए 1/3 VCC, ये 2/3 VCC है, जस्ट थोड़ा सा बढ़ा है. मान लीजिए 1/3 VCC, 2/3. कौन ज्यादा है, यही ज्यादा है. रिसेट पर क्या जाएगा, ये ज्यादा, तो रिसेट पे क्या हो जाएगा, रिसेट पर क्या जाएगा, 0. रिसेट नहीं करेगा, हाई ही रहेगा. रिसेट पर 0 है, बस देखिए से देख लीजिए.
कोई दिक्कत? रिसेट पे 0 है, इट विल नॉट चेंज इट। फर्स्ट टाइम व्हेन इट क्रॉसेस VTL इट डज नॉट चेंज। पहली बार जब ये चेंज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा था वैसा बना रहा, आउटपुट हाई बना रहा, आउटपुट हाई बना रहा। अब देखिए, अब ये एक्सीड करते करते VTH चला गया, VTH चला गया। अब यहां ध्यान दीजिए, VTH मतलब 2/3 VCC, नाउ इट इज एक्सीडिंग नाउ ये इंपॉर्टेंट है आपको यहां से, एज VC tries to just exceeds VTH, जस्ट एक्सीड करने की कोशिश कर रहा है। एज VC tries to exceed, यहां लिख सकते हैं tries to exceed VTH। जैसे ही इससे एक्सीड करना चाहेगा, देखिए अब यहां देखिए, चेक कीजिए, इस पर वोल्टेज ज्यादा तो क्या मिलेगा? प्लस। रिसेट पर ज्यादा क्या कर देगा? रिसेट। वाह, एक्सीड VTH आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। अब चेक, एक ही से चेक कर, दोनों से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं दिखा दे रहा हूं एक ही से। कंपैरेटर 1 विल बिकम, ये क्या बन गया इसका? ये ज्यादा हो गया, आउटपुट क्या हो गया? प्लस पर ज्यादा, आउटपुट क्या हो गया? 1, यानी कि रिसेट पर 1, दिस विल रिसेट दी आउटपुट, यानी कि आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। यहीं से देख ले, एक ही कंपैरेटर से, दोनों से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 हो जाएगा इसका आउटपुट, और इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, देख सकते हैं। बट एक से ही मैं चेक कर दिया, रिसेट पर 1 रिसेट कर दिया। चलिए, जैसे ही देखिए यहां तक पहुंचा, रिसेट यहां पर क्या होगा? इस पॉइंट पर क्या होगा? आउटपुट क्या हो जाएगा? रिसेट। समझे इस बात को? आउटपुट रिसेट हो गया। यहीं से डिसीजन ले लीजिए, जैसे ही इससे एक्सीड करेगा, देखिए यहां ध्यान दीजिए, एज इट एक्सीड दिस वोल्टेज 1, इस पर ज्यादा हो गया 1, रिसेट पर हाई, रिसेट कर दिया। रिसेट मींस, अब देखिए दिस रिसेट, नाउ कैपेसिटर इज नाउ द आउटपुट इज रिसेटेड। अब देखिए यहां के बाद देखिए क्या हो गया, यहां के ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। अब कैपेसिटर देखिए, अब देखिए आउटपुट क्या हो गया? रिसेट हो गया। इस कंडीशन पे बात कर रहा हूं, आउटपुट क्या हो गया? रिसेट हो गया। अभी इस कंडीशन की बात, इन दिस कंडीशन आउटपुट रिसेट हो गया, आउटपुट रिसेट कर दिया। इन दिस कंडीशन एज आउटपुट रिसेट Q 0 है तो Q बार क्या होगा? 1, Q बार क्या हो जाएगा? 1, Q बार 1 हो जाएगा, यानी कि यहां का आउटपुट 1, यहां का आउटपुट 1, ट्रांजिस्टर ऑन, BJT ऑन। अब BJT ऑन हो गया, जैसे ही यहां पर ये रिसेट हुआ, एज इट रिसेट्स BJT ऑन। जैसे ही आउटपुट लो हुआ, यहां पर हाई हुआ, BJT ऑन। समझे बात को? BJT ऑन हो गया, BJT ऑन हो गया, BJT ऑन हो गया। क्या हुआ? BJT ऑन हो गया तो इट हैज अ डिस्चार्जिंग पाथ, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर को एक डिस्चार्जिंग पाथ मिल गया है, कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। कोई दिक्कत? कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग पाथ मिल गया, ऑन हो गया, डिस्चार्ज। इस कंडीशन की बात, इन दिस कंडीशन, जैसे ही कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग पाथ होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होने लगेगा? डिक्रीज, 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 इट विल डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। फिर से यहां चेक करेंगे, देखिएगा यहां का वोल्टेज इस पॉइंट पर, डिसीजन पॉइंट, एज इट डिक्रीज, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, VC क्या होगा? डिक्रीज करने लगेगा, डिक्रीजेज। देखिए डिक्रीज करना, इस कंडीशन की बात, इन दिस कंडीशन इसे डिक्रीज कर रहा है। नाउ जैसे ही डिक्रीज करके यहां पहुंचेगा, कहां डिसीजन ले रहे हैं हम लोग का? डिसीजन पॉइंट क्या है? 1/3 VCC। जैसे ही इसको डिक्रीज होने, इससे डिक्रीज करेगा, एज इट ट्राइज टू डिक्रीज लोअर देन दिस, इससे जैसे ही घटने चाहेगा, देखिए इस पर क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, कम होना चाह रहा है, इससे कम, तो कौन ज्यादा हो गया? ये, यानी कि पॉजिटिव पर ज्यादा, कंपैरेटर तो क्या भेजेगा? सेट, आउटपुट क्या हो जाएगा? सेट। समझे बात को? ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, दोनों कंपैरेटर को चेक कर सकते हैं। यहां सेट मिलेगा, यहां रिसेट पर 0 हो जाएगा, देख सकते हैं। मैं एक ही से चेक करके दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से चेक कर। सेट पर 1 आ जाएगा, देखिए जैसे ही देखिए यहां से डिक्रीज किया, विच इट डिक्रीज एज इट ट्राइज टू डिक्रीज बिलो VTL, दैट इज 1/3 VCC। इसी को मैंने ऐसे लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 1/3 VCC, यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, कंपैरेटर ऊपर, ये देखिए, ये इसका वोल्टेज इससे कम गया, प्लस पर ज्यादा, कंपैरेटर 2 क्या भेजेगा? हाई की लो, इट विल सेंड्स हाई। आउटपुट ऑफ कंपैरेटर 2, आप कंपैरेटर 1 को भी चेक कर सकते हैं, ये 1 भेजेगा, ये 0 भेजेगा। आउटपुट ऑफ कंपैरेटर 2 बिकम्स ये लो, यही चेक करना है, ये लो, ये हाई, पॉजिटिव पर हाई, नॉन इन्वर्टिंग पर हाई, आउटपुट बिकम्स
1। अगर ये 1 बन गया, सेट पर 1, सेट पर इनपुट 1 है, सेट 1 है, सेट पर इनपुट 1 है, आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, ये आउटपुट ऑफ IC 555 क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ दिस IC क्या हो जाएगा, विल बिकम 1। अगर सेट पर 1 हो गया, सेट पर 1 तो ये भी 1। जैसे ही यहां पर पहुंचा, इसको मार्क कीजिए, ये हो गया 1। फिर देखिए, जैसे ही ये 1 होगा, ये 1 तो ये 0, ट्रांजिस्टर ऑफ, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, कैपेसिटर का स्टार्ट चार्जिंग, अगेन वोल्टेज इंक्रीज करेगा, सेम सिचुएशन, इंक्रीज कर यहां पहुंचेगा VTS से, इसका वोल्ट जैसे ही इंक्रीज करेगा, इससे ज्यादा होना चाहेगा, रिसेट पर 1, वाह, रिसेट कर देगा, ये हाई था, यहां हाई हुआ, फिर रिसेट। जब कैपेसिटर चार्ज होता है, देखिए चार्ज जब ये हाई होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, जब ये आउटपुट लो होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। यही आपको फॉलो करना है, यही फॉलो कर रहा है। जब हाई हुआ, कैपेसिटर चार्ज होने लगा, जब हाई हुआ, यहां लो मिला, बीजेटी ऑफ, कैपेसिटर चार्ज होते होते मैक्सिमम कहां तक जा सकता है वो, क्योंकि कंपेयर करना है, जाने के लिए तो इट कैन गो अप टू VCC, लेकिन यहां क्या है, कंडीशन जैसे ही कर रहे हैं सर्किट, कंडीशन ही चेंज हो जा रहा है। और ऐसा ये नहीं रहता तो कैपेसिटर VCC तक चार्ज होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, जैसे ही यहां हो रहा है कैपेसिटर चार्ज, इससे एक्सीड कर रहा है, रिसेट 1, रिसेट कर दे रहा है। समझे बात को, रिसेट कर दिया, जैसे एक्सीड किया, देखिए रिसेट हो गया, यहां पर एक्सीड कर दिया, फिर से यहां ड्रॉ कीजिए, फिर से देखिए रिसेट, एक्सीड किया, ये रिसेट पर 1, अगेन यू कैन राइट इट, अगेन इट डिस्चार्ज, जैसे ही 0 रिसेट होगा, डिस्चार्ज होकर यहां पर कंपेयर करेगा, इससे कम होगा, अगेन इससे कम होगा, ये कंपैरेटर 1 भेज देगा, इससे कम, ये ज्यादा, ये कम, 1, अगेन ऑन, अगेन जैसे ही ऑन होगा, कैपेसिटर चार्ज ऑन होता है, बीजेटी ऑफ हो जाता है। समझे बात को, दिस इज, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आपको मिलता रहेगा, ऐसा ही आपको मिलता रहेगा, दिस यू आर गेटिंग कैपेसिटर एंड 1 0 1 0 1 0 1 दिस। अब यहां तक हम आपका डिस्कशन वी हैव कंप्लीटेड। आगे अगर मैथमेटिकल एनालिसिस करना है तो हम देखते हैं ये ऑन और ऑफ पीरियड कितना होगा, ऑन और ऑफ पीरियड कितना होगा, ऑन और ऑफ पीरियड कितना होगा, यह भी हम देख सकते हैं, ऑन और ऑफ पीरियड कितना होगा, यह भी हम देख सकते हैं, ऑन और ऑफ पीरियड कितना होगा। अभी एक चीज तो आप ध्यान दे सकते हैं कि ऑन ये ज्यादा देर तक रहेगा, ऑफ कम देर तक रहेगा, क्योंकि देखिए चार्जिंग होता है तो इससे टाइम कांस्टेंट, देखिए इससे चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग होता है तो केवल RB से चार्ज होता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर रजिस्टर कम है पाथ में तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, नेटवर्क थ्योरी पर पढ़े होंगे। तो डिस्चार्जिंग टाइम कम है, चार्जिंग यानी ऑन टाइम ज्यादा है, ऑफ टाइम कम। समझे बात को, इसको थोड़ा छोटा दिखाइएगा, इसको थोड़ा बड़ा दिखाइए, थोड़ा छोटा है ये बड़ा। इसके ड्यूरेशन को भी मैं निकालने की कोशिश करूंगा। हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, इसके ड्यूरेशन को मैं निकालता हूं, पहले इसको लिख लिया जाए। Having discussed the working of this IC 555 in A-stable mode, we will now calculate the on time and off time. This is on time when output is high, and this is off time when output is low. When output is high, you can see that this is high, Q bar is 0, transistor is off, and then transistor is off, it starts charging. You can see charging, this voltage changes, capacitor voltage changes. When it tries to exceed this voltage, then this will reset. When it reset, it go output resetted this way. You can see easily. And when it resets, output reset, Q is 0, output is 0, Q bar is 1, BJT is transistor is on, capacitor start discharging through this path. Discharging through this path. As it discharge, voltage decrease करते जा रहा है. When it tries to decrease below this is high, this is going below this 1/3 VCC VTL, then this is high, this is trying to become low, at this point this is high, this is low, again high inverting positive terminal, non-inverting high, output will be 1, this will set the output, again output will become. समझ गए थे बात को? तो ये हम लोगों ने देखा था, ये ऑन टाइम, ये ऑफ टाइम निकालना है, ये ऑन टाइम और ऑफ टाइम हम लोगों को निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेन डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर। कैपेसिटर का वोल्टेज जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है VC इज, नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे, V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ।
यही है, हम ये टाइम निकाल रहे हैं, ये टाइम, दैट इज द चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए छोड़ दिया गया होता इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो कहां तक चार्ज हो जाता? VCC तक। कहां तक चार्ज होता? यानी V इन्फिनिटी जाता VCC। और V0 क्या है? यहां से देखिए ये टाइम निकाल रहे हैं, जस्ट एट देयर क्या है, ये टाइम हम निकाल रहे हैं, हम ये टाइम निकाल रहे हैं T-on, यहां से ये टाइम निकाल रहे हैं T-on ये निकाल रहे हैं। यहां पर देखिए यहां का वोल्टेज क्या है, यहां का वोल्टेज क्या है? VTL क्या है? 1/3 VCC। समझे बात को? नाम मैंने लिखा है VTL, बट दैट इज 1/3 VCC। V इन्फिनिटी क्या होगा अगर चार्जिंग के लिए छोड़ देते तो? VCC e⁻t। कोई दिक्कत नहीं इसमें? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं? तो इसे लिख सकते हैं VCC को, चलो हाँ VCC को हटाइए, एक सेकंड, चलिए इसको आप यहाँ इक्वेशन तो मेरा सही है। टाउ क्या है? टाउ क्या, चलो उसको फिर से हम एडजस्ट कर देंगे। टाउ आप जानते हैं, टाउ क्या है? चार्जिंग कैसे टाइम इससे चार्ज हो रहा है, दैट इज RA RB × C। इसी पास से चार्ज हो रहा है, RC टाइम कांस्टेंट, RA + RB × C इन है टाउ। एडजस्ट कर देंगे बात को। अब मुझे निकालना है ये टाइम, कौन सा टाइम? ये टाइम। इस टाइम पर क्या होता है? वोल्टेज कहां तक पहुंचता है? VTH तक। यानी कि ये जो मेरा कैलकुलेशन बन गया इस इक्वेशन में, VC व्हेन, ये टाइम निकालना, टाइम व्हेन, ये निकालना, टाइम व्हेन VC बिकम्स, या VC बिकम्स क्या बन जाता है? VTH। यही टाइम निकालना है, इसी टाइम पर बनता है। VTH क्या है? 2/3 VCC। ये टाइम निकालना है। VC = 2/3 VCC के लिए टाइम निकालना है, टाइम फॉर दिस। यही है आपका, यही जो टाइम निकालना, यही मेरा क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस। VC = 2/3 VCC के लिए टाइम निकाल, दिस इज मैथमेटिकल क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड व्हेन VC बिकम्स, फॉर VC to rise up to 2/3 VCC? This is the question. Time required for to VC becomes 2/3 VCC. यही टाइम, जो टाइम आएगा वही T-on है। तो चलिए लिख देते हैं, टाइम को सॉल्व कर देते हैं। 2/3 VC क्या बन जाए? 2/3 VCC। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, VCC + 1/3 VCC। VCC क्या हो जाए? 3 - 1 - 2/3 e⁻t अपॉन टाउ को लिख ही देते हैं, C RA + R। कोई नो इशू इन दिस। VCC इंटायर VCC कैंसिल, यहां VCC है, इंटायर VCC कैंसिल, इसको इधर कर दें। VCC कैंसिल, 2/3 - 1 = -2/3 - 1 = -2/3 e⁻t अपॉन C RA + R। दिस टाइम इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे दैट इज T-on। निकालिए यहां से, ये आपका आ जाएगा 3 LCM, 3 में से 2 गया, -1/3 = -2/3 e⁻t अपॉन C RA + R। समझे? बहुत बढ़िया। माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 कैंसिल, 1/2 = e⁻t C RA + R। बस एक बार में निकल गया। आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ln 1/2 = -t अपॉन C RA + R। नो इश्यू इन दिस। लेकिन लॉग बोथ साइड, ln बेस ई के बेस पर, ये माइनस इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ln 1/2 C/RA + R। टाइम निकाल देंगे, द इक्वेशन ऑफ द टाइम विल बिकम द टाइम t एक्सप्रेशन ऑफ द t विल बिकम T-on। वही ना, ये जो सॉल्यूशन आएगा वही T-on, दैट इज T-on। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज T-on। तो इसको अगर एडजस्ट करें तो ln 2 माइनस को इधर एडजस्ट कर दिया, C RA + R। यही ना है द इक्वेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज T-on। यानी कि ln 2 आता है 0.69, t = 0.69। जो सॉल्यूशन आया आपका, जो सॉल्यूशन आया t = 0.69, ln 2 0.69, C
सी आर ए प्लस आर बी, ये आपका आया। दिस इज द सॉल्यूशन। इसी टाइम को टी ऑन बोल देते हैं, इसी टाइम का नाम दे दिए टी ऑन। सो टी ऑन इज इक्वल टू दिस टाइम इज टी ऑन, दिस टाइम इज, हमने क्या कैलकुलेट किया है, अगर आप देखे होंगे इसी टाइम को, ये जो सॉल्यूशन निकला है टी, दिस इज टी ऑन, यही टी ऑन। तो मेरा टी ऑन आया 0.69 सी आर ए प्लस। टी ऑफ, इसी तरह से अगर हम टी ऑफ निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, टी ऑफ के लिए हम डिस्चार्जिंग सेम, ये टाइम मेरा टी ऑफ है, ये टाइम मेरा टी ऑफ है, दिस टाइम इज टी ऑफ। डिस्चार्जिंग के समय वहां ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्जिंग के समय हम लोगों ने क्या, जो डिस्चार्जिंग पाथ है आरबी के थ्रू, आर ए नहीं है डिस्चार्जिंग पाथ में, देखिए आरबी के थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो सेम एक्सप्रेशन ओनली सी इंटू आरबी। टोटल टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड टी ऑन प्लस टी ऑफ। टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, कितना आ जाएगा 0.69 सी आर ए प्लस आर बी प्लस 0.69 आर बी। ये क्या आ जाएगा 0.69 आर ए, 0.69 आर ए, सी को भी लगा दीजिए, सी बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 0.69 आर ए प्लस 2 आर बी, 0.69 आर बी, 0.69 आर बी, 0.69 2 आर बी। ये टोटल टाइम आया। टोटल टाइम कहने का मतलब क्या है, टोटल टाइम कहने का मतलब है आपका ये टाइम, ये है मेरा टोटल टाइम, ये है टोटल टाइम टी ऑन प्लस टी ऑन, ये है मेरा टोटल टाइम। समझे बात को, टोटल टाइम हम लोगों ने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको बोलता है ड्यूटी साइकिल जो होता है आपका टी ऑन बाय टी ऑन प्लस टोटल टाइम पीरियड, कितने देर तक ऑन रहा, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, इंटू 100% कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ये आपका आएगा टी ऑन कितने देर तक है, ड्यूटी साइकिल मींस कितने परसेंट टाइम तक वो ऑन रहा, टोटल ड्यूरेशन टी था, टी में इतने देर तक वो ऑन रहा, कितने परसेंट टाइम तक वो ऑन रहा। तो टी ऑन मेरा क्या आ गया 0.69 आर ए प्लस आर बी इंटू सी, और ये क्या है टी ऑन प्लस ऑफ कितना आया है 0.69, बहुत सिंपल है, आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी। देख सकते हैं परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 कर देंगे, तो ये आपका आ गया आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस 2 आर बी, परसेंट में निकालेंगे तो 100 कर देंगे। समझे बात को। अगर मान लीजिए कि आर ए 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 50%, आर ए अगर 0 कर देंगे 50% आ जाएगा। देख सकते हैं आर ए 0 कर दिए, स्मॉल कर दिए, आर ए को बहुत स्मॉल कर दिए, कहां तक चला जाएगा 50% तक। समझ सकते हैं ड्यूटी साइकिल 50% मतलब क्या हुआ, जितना 50% टाइम तक ऑन रहेगा 50% टाइम तक ऑफ रहेगा। समझे बात को। तो ये है आपका, इसको हम लोग डिजाइन करेंगे, देन वी विल फॉर ए पर्टिकुलर फॉर ए गिवन ड्यूटी साइकिल 25%, 30%, सॉरी 70%, फॉर ए 75% के लिए मान लीजिए कि निकालना है आर ए और आरबी का वैल्यू, और फिर हम डिजाइन करेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डिजाइन करेंगे। 75% ड्यूटी साइकिल है, आर ए ले लीजिए सुटेबल एंड देन सेलेक्ट आर ए एंड आरबी। टेक आर ए सुटेबल वैल्यू ऑफ आर ए एंड आरबी, एक सुटेबल वैल्यू ऑफ आर ए एंड आरबी, एक आर ए सेलेक्ट कर ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आरबी दे दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग 75% ड्यूटी साइकिल के लिए आप यहां से डिजाइन कर दीजिए। आर ए आरबी का वैल्यू क्या होगा देख सकते हैं। आर ए आरबी पर हमारा ऑन और ऑफ पीरियड डिपेंड कर रहा है, ये समझने की बात है। समझ गए बात को, समझ गए बात को। अगर आपको देगा कि 75% ड्यूटी साइकिल के लिए आर ए आरबी डिसाइड करें, हम लोग डिजाइन करेंगे, वी विल डिजाइन दिस, तो वी विल इजीली डिजाइन। ये हमारा कंप्लीट हुआ यहां पर। हैविंग डिस्कस दिस ए स्टेबल ऑपरेशन ऑफ IC 555, we will discuss
IC 555 इन मोनोस्टेबल मोड और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम लोगों ने देखा, या ए स्टेबल मोड में कैसे ऑपरेट करेंगे ये हम लोगों ने देखा। इसी में देखिए हम लोग चेंज करेंगे। यहां हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेबल स्टेट होगा, सपोज रीसेट इज द स्टेबल स्टेट, वो स्टेबल स्टेट में रहेगा, आउटपुट आपका रीसेट स्टेट में रहेगा आउटपुट, और जैसे ही हम ट्रिगर दबाएंगे फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन द आउटपुट विल गो टू हाई एंड अगेन इट विल कम बैक टू इट इज स्टेबल स्टेट। फॉर अ ड्यूरेशन इट विल गो टू हाई एंड अगेन इट विल कम बैक टू स्टेबल स्टेट। तो अब यहां ट्रिगर की जरूरत है। देखिए ये मेरा ये थ्रेशोल्ड इनपुट था, इसका नाम दिया था थ्रेशोल्ड, ये पिन है थ्रेशोल्ड, देखिए लिख लीजिएगा थ्रेशोल्ड, और इस पिन का मैंने नाम दिया था कहां, ये वाला पिन ट्रिगर, एक था ना ट्रिगर। दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर कैपेसिटर से जोड़ दिया था। दिस वोल्टेज चेंजेस, दिस वोल्टेज चेंजेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, वी हैव टू यूज द ट्रिगर। यहां ध्यान दीजिए मैं कैसे कर, यहां चेंजिंग कर रहा हूं, पेन को भी मैं थोड़ा सा इसी में चेंजिंग कर रहा हूं, फिर से ड्रॉ कीजिएगा। सब टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली आई एम ड्रॉइंग इन द सेम सर्किट, जस्ट आई एम ट्राइंग टू, वी हैव डिस्कनेक्टेड द ट्रिगर एंड थ्रेशोल्ड। और हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, वी हैव डिस्कनेक्टेड, वी हैव टेकन द ट्रिगर, चलो डिस्कनेक्टेड दिस ऑल्सो, ऑल दिस थिंग्स। सबसे पहला हम लोग क्या ध्यान देंगे, ट्रिगर इज सेपरेटेड फ्रॉम थ्रेशोल्ड। ट्रिगर इज, दिस इज ट्रिगर, द ट्रिगर टर्मिनल IC 555 में आउटपुट टर्मिनल होगा, दिखाएंगे वो भी हम। ट्रिगर को मैंने क्या किया है, सेपरेट कर लिया, यहां पर हम लोग ट्रिगर इनपुट देंगे। अब बाकी जैसे करते थे, एक ही रजिस्टर का यहां यूज कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ 2 रजिस्टर वी आर यूजिंग 1 सिंगल रजिस्टर। नेम इट आर ए, दिस इज नॉट कनेक्टेड, यहां पर कनेक्शन नहीं है, ऐसे ऊपर दिखाया हूं, ऐसे है, ठीक है। ये आर ए और कैपेसिटर कनेक्टेड। नाउ थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वैरी करेगा, दिस विल वैरी अकॉर्डिंगली, सेट रिसेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल सेट एंड रिसेट, आउटपुट विल चेंज। इसको मैंने यही कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसे रिमूव किया। और जो डिस्चार्ज, ये जो था डिस्चार्ज पॉइंट, डिस्चार्ज किसे कराना है मुझे, कैपेसिटर को, चलो यही कनेक्ट कर देते हैं, यही कनेक्ट कर देते हैं आसानी से। कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराना है, यहां कनेक्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्चार्ज पिन, ये पिन आपका ऐसे में निकला हुआ होगा, दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए बात को। आप देखिए आउटपुट आपका, देखिए ट्रिगर को ऐसे मैं दिया हूं, ट्रिगर को इनिशियली हाई दे रखे हैं, जब ट्रिगर करेंगे तो इसको लो कर देंगे। इनिशियली ये ट्रिगर इनपुट है, इनिशियली इट इज हाई मोर देन VTL, इससे ज्यादा रखा हूं। ट्रिगर जो है मेरा, ट्रिगर जो है ये हाई है, हाई पर करके छोड़ रखा हूं, जब ट्रिगर करूंगा तो इसको लो कर दूंगा। यहां चलो आगे, यहां लाके मैंने लो कर दिया, चलो ये ट्रिगर है मेरा, ये है मेरा V ट्रिगर, ट्रिगर लिख लीजिएगा, इट इज मोर देन दिस 1/3 VCC, VTL से ज्यादा है। VTL यानी कि इस टर्मिनल के वोल्टेज से, इस कंपैरेटर के इस टर्मिनल से ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है, दिस इज मोर, इसको मैंने मोर करके रखा है, तो ये कहां रहेगा, दिस इज मोर, इन्वर्टिंग पर ज्यादा है इससे, तो क्या रहेगा, ये 0, सेट पर 0, यानी कि आउटपुट आपका रिसेट स्टेट पर रहेगा। आउटपुट आपका रिसेट स्टेट पर रहेगा, आउटपुट कहां रहेगा, रिसेट स्टेट पर। वी आउट कहां रहेगा, रिसेट स्टेट पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आउटपुट, अब मैंने ट्रिगर दिया, जैसे ही ट्रिगर दिया आपका क्या होगा, ट्रिगर दिया आपने, क्या किया, इसको लो कर दिया, इसको लो। ट्रिगर का मतलब दिस वोल्टेज इज लो नाउ, दिस वोल्टेज इज नो नाउ। जैसे ही आपने लो किया, इसका वोल्टेज लो, इसका हाई, इस पर हाई, इसका लो, इसको लो कर दिया, दिस इज हाई, दिस इज लो। यहां सेट पर 1, आउटपुट विल सेट टू 1। आउटपुट आपका सेट हो गया, कुछ देर तक ये 1 रहेगा, एंड देन एज इट इज 1, यहां ध्यान दीजिए आप, एज इट इज 1, यहां लिखिएगा, आप लिखते रहिए, एज इट इज 1, एज आफ्टर द ट्रिगर पल्स, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए ट्रिगर पल्स दिया है, क्या होगा, आफ्टर द ट्रिगर पल्स क्या है, ट्रिगर दिया, इसका वोल्टेज क्या किया, ट्रिगर का मतलब इससे कम, ट्रिगर पहले हाई था, इसको लो कर दिया। आफ्टर द ट्रिगर क्या है आपका, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर 2 क्या है, कंपैरेटर 2 0, कंपैरेटर 2 का आउटपुट क्या है, देखिए
सॉरी आफ्टर द ट्रिगर की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ट्रिगर इसको कम कर दिया, ये कम है ये हाई है। आफ्टर द ट्रिगर कंपेरेटर टू का आउटपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 1। देखिए ये ज्यादा है ये कम, इसको कम कर दिया, वी हैव डिक्रीज दिस वोल्टेज। हमने क्या किया, खुद से डिक्रीज कर दिया, खुद से एक पल्स देकर एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा वी हैव डिक्रीज दिस वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, इसको 0 नहीं लिखेगा, सॉरी 1। यहां देखिए ये कम है ये ज्यादा है 1। दिस विल सेट दी फ्लिप फ्लॉप सेट होने का मतलब क्या है, आउटपुट क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, इसका आउटपुट, ये आउटपुट क्या हो जाएगा 1। आउटपुट हाई, देखिए हाई कर दिया, आउटपुट कहां चला गया, हाई। देखिए ऊपर में आउटपुट प्लॉट कीजिएगा, आउटपुट का प्लॉट ट्रिगर। जैसे ही आउटपुट 1 होगा, दिस आउटपुट इज 1, यानी कि क्यू बार क्या है 0, दिस मॉस ट्रांजिस्टर इज ऑफ, दिस विल, यहां लिखिए व्हेन आउटपुट इज 1 क्यू बार इज 0 दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ। अगर ये ऑफ है तो डिस्चार्जिंग पाथ खत्म, अब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर चार्ज होगा, वीसी का वोल्टेज एक्सीड करेगा, यहां लिखिए कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। देख सकते पूरा लाइन लिखिएगा, क्यों चार्ज करेगा, क्योंकि आपका बीजेटी ऑफ हो चुका है, बीजेटी ऑफ, वहां 1 यहां 0, बीजेटी ऑफ। जैसे ही वीसी का वोल्टेज एक्सीड करेगा, किससे एक्सीड करेगा, एक्सीड्स, एज वीसी एक्सीड्स, लिखिए किससे एक्सीड। अब देखिए यहां से वीसी एक्सीड कर रहा है तो यहां का वोल्टेज चेंज कर रहा है, वीसी चेंज, इसको कनेक्ट कर रखे हैं, देखिए ये कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्टेड है, ये वीसी एक्सीड कर, इससे जैसे ही एक्सीड करिए, देखिए प्लस पे एक्सीड करिए। अब ये क्या करेगा कंपैरेटर, यहां ध्यान दीजिए, इस पर एक्सीड, ये सेट, ये रीसेट पे क्या कर देगा 1, रीसेट पर 1 मतलब कि रीसेट कर दिया। एज वीसी एक्सीड्स VTH इट रीसेट्स दी आउटपुट, फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करेगा, आउटपुट रीसेट। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जैसे ही ये एक्सीड किया, इसको पहले आप लिख लीजिए, इसको लिखिए यहां, इसको लिखिए पहले आप, इसको लिखिए, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं, थोड़ा छोटा करके यहां कर दिया, ठीक है, समझ गए। इसको लिखिए, आफ्टर द ट्रिगर पल्स आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर टू 1, ट्रिगर किया, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर पल्स 1, ध्यान दे सकते हैं आप, और आपका समझ गया। आफ्टर द ट्रिगर पल्स आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर टू 1 दिस विल सेट द फ्लिप फ्लॉप। चलो यहाँ का कंपैरेटर, ये कंपैरेटर 1 का देखिए, ट्रिगर किए, कम कर दिए, दिस इज हाई, सेट आउटपुट 1 क्यू बार 0 ऑफ, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, दिस एक्सीड्स, जैसे ही चार्ज करेगा ये एक्सीड, देखिए जब तक चार्ज किया, जैसे ही एक्सीड किया, इसको भी बना दे रहे हैं, यहाँ देखिए यहां से बना रहे हैं। अब क्या किया, जैसे यहां देखिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज होकर ये वीसी खींच रहा हूं, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होकर कहां तक पहुंचा, VTH तक। जैसे ही VTH तक पहुंचा, देखिए ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, रीसेट, आउटपुट रीसेट, दिस इज मोनोस्टेबल मोड। यहां तक ये रहा ऑन, फिर ये क्या किया, आपका ऑफ हो गया, दिस इज दी। फिर ट्रिगर करेंगे कहीं, जब तक ये ट्रिगर हाई रखेंगे तब तक सेम सिचुएशन बना रहेगा, जब तक ये ट्रिगर हाई रखेंगे लोड, फिर ट्रिगर करेंगे, फिर ये थोड़ी देर के लिए हाई जाएगा, फिर ये लो, समझे बात को। ट्रिगर पर हाई दे रखे हैं, ट्रिगर पर हाई दे रखे हैं, ये क्या कर रखा है, सेट पर 0 कर रखा है, ऐसे इनिशियल स्टेट पर वो 0 रहेगा। जैसे ही ट्रिगर पर लो करेंगे, अब ये हाई हो गया, सेट को 1 करेगा, देखिए सेट 1 हो, जैसे ही वो ऑन करेगा, ये ट्रांजिस्टर देखिए कट जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 0, चार्ज होगा, चार्ज होकर वोल्टेज एक्सीड करेगा, फिर से रीसेट करेगा, समझे बात को। अब ये ड्यूरेशन भी आप निकाल सकते हैं, ये ड्यूरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, इनिशियल वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर 0, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे लिखते हैं, VCC 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, ये ना होता है, इससे आप निकाल सकते हैं VC क्या, कौन सा टाइम निकालना है, जब VCB का बन जाए 2/3 VCC, यहां से आप आसानी से इस टाइम को निकाल सकते हैं। टाइम फॉर ये निकालना है, टाइम जितनी देर तक ये ऑन रहा, ऑन टाइम कैसे निकालेंगे जी,
ये जो चार्जिंग टाइम निकालेंगे, चार्जिंग टाइम निकालेंगे, यानी कि टाइम फॉर कहां तक चार्ज हो, Vc बिकम इक्वल टू 2/3 Vcc, तभी तक नॉन है। जैसे ही 2/3 Vcc हो जाएगा, ये ज्यादा, फिर से रीसेट। तो यहाँ 2/3 Vcc रख कर अगर आप निकालेंगे, मैं बाकी को डिलीट कर दे रहा हूं, 2/3 Vcc इज इक्वल टू, ये जो टाइम निकलेगा, ये जो टाइम निकलेगा, ये टाइम भी आप निकाल सकते हैं, Vcc 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज सी आर, एक ही रेजिस्टेंस है तो सी आर है। तो ये आपका आता है, यहाँ का जो टाइम आता है, ये जो टाइम आता है 1.1 आर, आर है तो आर बोली, आर भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं, यानी कि टी ऑन जो आता है, जितनी देर तक पल्स ऑन रहा, 1.1 आर है। समझे? चार्जिंग कैपेसिटर का इक्वेशन है, ऐसे भी लिख सकते थे। नेटवर्क वाले जो पढ़े होंगे, वीसी इंफिनिटी प्लस कैसे लिखते थे जी, Vc 0, सब कुछ रिलेटेड है, Vc इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। Vc इंफिनिटी कितना है, अगर सही चार्ज होते रहता तो Vcc तक जाता। Vc 0 कितना है, 0। Vc इंफिनिटी कितना है, Vcc 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यही ना लिख रहे हैं Vc ना, Vcc 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यही ना लिखे हैं यहाँ, 1 माइनस टी अपॉन। समझे बात को? इसी को टाइम फॉर Vc बिकम 2/3 Vcc, इसी इक्वेशन को सॉल्व, इस कैसे लाया आया है इक्वेशन आपको बताया, नेटवर्क थ्योरी में बताया है उन्होंने। 1.1 RA इंटू सी, ये आता है आपका। अब कितनी देर तक ऑन रखना है, ये आपका टाइमर की तरह काम करेगा। जितनी देर तक आप ट्रिगर किए, जितनी देर तक मशीन को ऑन रखना है, आप डिसाइड करेंगे बाय यूजिंग द सुटेबल वैल्यू ऑफ RA इंटू सी, देन इट विल बिकम ऑफ। कितनी देर तक मशीन ऑन रहेगा, डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू। सो इन दिस वे वी हैव सीन that this IC 555 can be operated as astable, monostable. In monostable only a trigger is required. Initially the trigger is high. अगर इसको हाई कर रखें, यहीं से चेक कर लीजिएगा, ट्रिगर पे हाई रखे हैं, ये ज्यादा है, सेट को क्या किया, 0 किए हुए। अब जैसे ही 0 किया, अब ट्रिगर दिए, ट्रिगर मतलब ट्रिगर कम कर दिए वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज दिस इज हाई, सेट 1, इट विल बिकम सेट। जैसे ही सेट होगा, आपका देखिए ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। पहले ऑन था, यहाँ देखिए पहले ऑन था, जब देखिए सेट 0 था, जब 0 था तो ये 1 था, तो ये ऑन था, कैपेसिटर को चार्ज ही होने नहीं दे रहा था। जैसे ही यह 1 हुआ, पहले 0 था, यहाँ जब 0 था, पहले देखिए यहाँ जब 0 था आउटपुट, तो ये देखिए जब 0 था तो 1, ये ऑन था, ऑन मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज। जैसे ही यह 1 हुआ, यहाँ 0 मिला, कैपेसिटर बीजेटी ऑफ, चार्जिंग शुरू, दिस वोल्टेज चेंज हुआ, चेंज कर दिया। कब किया, जब वो चेंज होकर यहाँ पहुंचा, Vc को प्लॉट किया। समझे बात को? ये कैपेसिटर मेजर रोल प्ले कर रहा है, यही मेजर रोल प्ले कर रहा है, देखिएगा। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया, अब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे इस पर अगली क्लास में। थैंक यू।